never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. दोस्तों, तो आज एक और सपना पूरा होने जा रहा है विच हैज़ बीन ऑन माई विश लिस्ट फॉर द पास्ट 1 ईयर। शूटिंग करने आने की सोच रहा था मैं, बहुत कोई कंपनी नहीं मिल रही थी, तो फाइनली वी आर हियर एंड हम शूटिंग करने जाने वाले हैं। और आज हमारे साथ एक और शार्प शूटर है SSB के, इनिशियली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 1AFSB देहरादून। दिस इज रमन हमारे स्टूडेंट है एंड ही जस्ट गॉट रिकमेंडेड फॉर द सेकेंड टाइम फ्रॉम 1AFSB देहरादून। एंड तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेंगे, ठीक है, कैसे शूट करना है, क्या करना है, परफॉर्मेंस विल सी द परफॉर्मेंस एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो we'll also have a short conversation with Raman. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Open my head a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Barrel, air cylinder and palm paste or plus. All you have to do is align 3 circles, front, 2 and third is on target, the red one. Okay. Okay, ठीक है, now करें। हाँ ओके, सो दोस्तों आज हमारे साथ हैं रमन। सो एज यू गाइस ऑलरेडी नो, एंड रमन गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस थ्रू एफकेट एंट्री, दोनों बार 1AFSB देहरादून, राइट। सो इन्होंने 2 चीज़ों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, वन इज़ फोकस एंड द अदर वन इज़ कंसिस्टेंसी। तो अभी इस सेशन में हम थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे सेशन को, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, सो रमन, क्वेश्चन टू यू, जो सेकेंड टाइम जब तो रिकमेंडेशन लिया तूने, राइट, सो पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल से कि लक बेस्ड होता है, ये होता है, वो होता है, तो तेरा क्या मानना है कि तेरे केस में क्या रहा? वाज इट लकी, डिड यू गेट लकी, या आपने प्रिपरेशन करा था, और व्हाट इज इट फॉर यू? सर, व्हाट आई पर्सनली फील इज कि लक तो होता ही नहीं है सिर्फ, आपको काम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा हो जाता है कि PR है, कहीं ना कहीं उसका एज शायद मेरे को लगता है कि मिल जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में अपने, जिसमें मैं लास्ट रिकमेंड हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये कोशिश करी है कि मैं दोनों में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ
और जो इतना मेरे से हो पाया उतना मैंने ट्राई किया और आई गॉट द सक्सेस। ओके, सो डिफरेंस और इसमें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या रहा? मतलब फर्स्ट रिकमेंडेशन में क्या किया आपने, सेकंड रिकमेंडेशन में क्या किया, और डिफरेंट कैसे था, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अटेम्प्ट्स, पिछले वाले अटेम्प्ट्स से? सर मेरे दोनों अटेम्प्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। हाँ, कहीं ना कहीं GTO थोड़ा वो होता है कि आपको ऑन द स्पॉट सिचुएशंस जैसी हो रही है उस हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दोनों अटेम्प्ट्स एक जैसे थे। पर पहले की अटेम्प्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई वुड से कि हाँ, कुछ चीज़ें जैसे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, आपको अपनी स्टोरीज में नेचुरल लाना पड़ता है। जो आप सीख के गए हो ऑन द स्पॉट आपको चेंज करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे आप कोई आजकल क्या है कि पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, तो पहले वाली थीम्स जैसे एक्सीडेंट वाली थीम आ गई वो नहीं चलती हैं। ओके, तो आपको क्या ऑन द स्पॉट अगर पिक्चर चेंज हो रही है तो क्या नेचुरल थीम्स निकल के आती हैं, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस डालने पड़ते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने चेंज करा है। साइक स्पेशली जो मैं पहले रेडी रटाई स्टोरीज लिख देता था, पर वो मेरे को लगता है कि जब से थोड़ी नेचुरल साइक निकल के आ रही है। नेचुरल साइक के लिए क्या करा आपने? नेचुरल साइक के लिए सर यही है कि ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो साइक की, मैं तो ये बोलूँगा। और जितना बस ये है कि जैसे आप कहते हो इमोशंस वगैरह डालो, व्हाट आर द इमोशन थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर, उस पर थोड़ा फोकस रखा है मैंने। और जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उससे मेरे वो फोटो जो आ रही है वो कैसे रिलेट हो रही है वैसे कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, ओके, ग्रेट। सो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो मतलब जैसे ये तो साइक का बताया, इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने इसमें अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं करी थी और जो 2 अटेम्प्ट्स में आप रेकमेंड हुए उसमें कुछ ऐसा आपने डिफरेंट करा था? सर साइक का तो बता ही दिया ना। तो इंटरव्यू का आई वुड से कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता होना चाहिए। वो किसी से भी पूछ लेते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स की नज़र में बता दो या आपके पेरेंट्स में स्ट्रेंथ वीकनेसेस बता दो। तो मैं पहले क्या करता था कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं तो उनके उठा ली, उसने ऐसा कुछ कह दिया, वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ जाके, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, वहाँ पे फंस जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो फिर ओवर दी जर्नी या ओवर द टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता करनी पड़ेंगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने जो CIQs हैं उनमें क्वेश्चंस ढूंढो, खुद ट्राई करो कहाँ पे फंसाने की कोशिश कर सकता है वो। तो खुद सोचो कि भाई यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसे हो जाता है। और GTO में तो सर मेरे को लगता है मैं नेचुरली काफ़ी सही रहता हूँ, शुरू से GTO मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। और GTO तो सही है, मेरे को लगता नहीं मैंने ऐसा कुछ चेंजेस किया। बस ये है कि थोड़ा मैं डोमिनेटिंग साइड पे ज़्यादा था, उसको मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश करी है। अच्छा, कैसे करा ये चीज़? GD में मैंने पार्टिसिपेशन कम करी है अपनी। अच्छा। और मुझे लगता है कि काफ़ी जब हम लोग GD वगैरह वाला क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं मतलब पार्टिसिपेशन कम करने से क्या नुकसान नहीं होता फिर? कि मतलब GD में तो आप अच्छा पार्टिसिपेशन था और फिर मैंने कम कर दिया पार्टिसिपेशन, तो उसके बाद अब मैं आ ही नहीं रहा सामने। सर ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, लेकिन जो आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो ना वो आपको पॉइंट रखने का तरीका होता है। अच्छा। अब कुछ बंदे होते हैं कि ऐसे कूद जाते हैं और डिस्कशन में घुस गए और उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा बोल रहा है, तो बंदे क्या लड़ने लग जाते हैं उससे। कि जस्ट अ सेकंड आई विल कंप्लीट गिव मी 30 सेकंड्स, ऐसा कुछ बोल के बंदे लड़ने लग जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आपको वो भी दिखाना है, मतलब अपना बड़कपन भी दिखाना है कि हाँ ठीक है भाई तू बोल ले, खुश है, ठीक है। काफ़ी टाइम है, 15 मिनट है, मिल जाएगा टाइम मेरे को। और GD में मैं ये भी बोलूँगा कि थोड़ा अर्ली पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए। अच्छा। उससे क्या कि सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, ये मैं मानता हूँ। और PGT में आइडियाज़ आ रहे हैं, घुसो आगे। और मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं बाहर से देख के मेरे को आइडिया नहीं आता है, मैं अंदर घुसता हूँ तभी जाके थोड़ा आइडिया फील लेना पड़ता है, फट्टे वट्टे दिखते हैं, लगते हैं। सही है, बढ़िया, मज़ा आता है। चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, AFSB का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? 1 AFSB का स्पेसिफिकली कुछ इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ चैलेंजिंग लगा, कुछ एनी एक्सपीरियंस अलोंग दैट वे? क्योंकि मतलब यू एक्सपीरियंस डिफरेंट बोर्ड्स, राइट? सो 1 AFSB देहरादून स्पेसिफिक क्या डिफरेंट लगा? 1 AFSB सर ऐसे तो कुछ नहीं, सही है, बढ़िया, सब सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, बढ़िया, अच्छे से ब्रीफ करते हैं, सही है, बहुत सिस्टमेटिकली वे में सब कुछ होता है, इंस्ट्रक्शन सुनते जाओ और काम करते जाओ, बस यही है। चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगा एयरफोर्स के मेरे को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स चैलेंजिंग लगता है आर्मी से। मैं आर्मी में कई बार जाता हूँ, मैं 13-14 कर देता हूँ, पर यहाँ पे मेरे से 11 भाई ऐसे ही होते हैं। चैलेंजिंग यही चीज़ लगती है, बाकी आप काम नहीं करोगे तो चैलेंजिंग तो हर चीज़ ही लगेगी। वेरी ट्रू। सो एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप हर SSB एस्पिरेंट को देना चाहोगे? हर एस्पिरेंट सर, आई वुड से कि नेवर गो विद द रूल्स,
नेवर गो विद द रूल्स। जो आपने कोचिंग में सीखा है ठीक है, अच्छा है, आपको पता है चीज़ें, बट ऑन द स्पॉट आपके साथ जैसी सिचुएशंस हो रही है, आप जैसी सिचुएशंस में आ रहे हो, आपको इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ती है चीज़ें। आपका ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है आपको उस हिसाब से करना पड़ता है। अब ग्रुप की पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो देन यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड बी अ लीडर। लेकिन अगर सारे आगे आ रहे हैं वो भी केओस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इम्प्रोवाइजेशन इज़ अ वेरी मस्ट की एस्पेक्ट। हाँ, की एस्पेक्ट। और आई वुड से कि थोड़ा सा जो उनको चाहिए, उनको बंदा चाहिए जो लीड कर सके वैसा। तो ट्राई करो कि आप नेचुरल लीडर आओ, ना कि ज़बरदस्ती वाले लीडर घुसो। कि कुछ बंदे होते हैं कि अब अंदर घुस गए, आइडिया है नहीं, और फिर बाहर से पूछते हैं भाई आइडिया बताओ अंदर आके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नेचुरली चीज़ें जाने दो। मैं तो कहूँगा कि इंजॉय करो प्रोसेस को, तो वो सही रहेगा। क्या कुछ अप्रोच थी तुम्हारी कि जीडी में घुसने से पहले या ग्रुप बेस्ड जितने भी टास्क वगैरह थे, तो उसमें घुसने से पहले कुछ आपका मतलब पर्सपेक्टिव था कि भाई मेरा ये ड्राइविंग प्रिंसिपल्स है और दिस इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव मे बी विद द ग्रुप? जीडी के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा अर्ली पार्टिसिपेशन हो। एक बार शायद आपने ही कहा था कि अर्ली पार्टिसिपेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है। हाँ, छोटा पार्टिसिपेशन। हाँ, छोटा। तो मैं जीडी में ट्राई करता हूँ, मैं शुरू में 1-2 पॉइंट रख दूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या बंदे खुले लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे सारी साइड से पॉइंट्स आने लगते हैं अच्छे से। फिर ट्राई करो, देखो ग्रुप कैसे कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी रिसेंट ये वाला अटेम्प्ट है, इसमें बहुत केओस हो गया था ग्रुप में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट फिश मार्केट जो बन रहा है। तो बैठे रहो चुपचाप, ट्राई करो काम डाउन करने की ग्रुप को। ऐसा हो गया जीडी में। और बस ये नेचुरल वे में जाने दो, साथ में लेके चलना है सबको। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। अब एक फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं हम। ओके, तो टफ कौन सा लगा, जीटीओ या इंटरव्यू? इंटरव्यू क्यों? इंटरव्यू में कुछ भी कहीं भी उसका ग्राउंड है, कहीं भी खेल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आगे से। अब अगर जैसे अभी रिसेंट वाले में मैंने न्यूज़ बता दी कि कहता कि कोई भी 2 इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ पिछले 10 दिन में जो हुई हैं, तो सबसे रिसेंट यही था कि जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और यूएस की, टैरिफ्स वाली, तो वो मैंने बता दी। वो भी जीडी का ही ऑफिसर था, तो उसने इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टर्म्स पूछे मेरे से, तो वहाँ पे घुमाया उसने काफ़ी मेरे को, काफ़ी ट्राई किया उसके फंसाने की। फेयर इनफ, ठीक है। सबसे फेवरेट OLQ? डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स योर गोल, तो मैं मानता हूँ कि जो बाकी के OLQs जो आप में कम भी है ना, आप उनके लिए मेहनत कर लोगे। आपको बस आपके गोल की तरफ नजर रखनी है, और साथ की जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं वो तो आप साथ में लपेट ही लोगे कहीं ना कहीं। फेयर इनफ। ओके, सबसे ज्यादा ग्रिलिंग किस पार्ट में हुई थी? सबसे ज्यादा ग्रिलिंग इंटरव्यू में होती है। इंटरव्यू में कोई पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें ग्रिलिंग? सर मेरी ग्रेजुएशन जो है 22 की है। अच्छा, तो अभी 3 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी मुश्किल लगता है कि मुश्किल तो नहीं, बट वहाँ पे फंसा लेते कई बार कि भाई तूने घर वालों के पैसे वेस्ट किए हैं और तू 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। तो फिर मैं उनको बताता हूँ नहीं सर ऐसा नहीं है। एक बार तो थोड़ा वो भी हो गया था, वो कह रहे थे पूरे घर वालों के पैसे वेस्ट किए हैं। मैं कहा नहीं सर ऐसे कैसे, रिजल्ट्स तो आ रहे हैं मेरे पास, मैंने काम भी करा है, ये देखो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस भी है। बाकी और कुछ पर्सनल लाइफ चीज़ें भी होती हैं जो बंदा बता देता है इंटरव्यू। इसको फिर डील कैसे करा तूने कि लाइक डील? सर होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस ना जाने से पहले हॉन्ट करते हैं एक बंदे को, है ना, कि मैं खुद ही सोच के इतना जा रहा हूँ कि मैं खुद ही वहाँ पे जाके उसने अब एक क्वेश्चन रख दिया मेरे सामने, तो आई बिकम नर्वस, ठीक है, एंड उस चक्कर में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आंसर। तो हाउ डिड यू गेट अराउंड दैट? सर शुरू के अटेम्प्ट्स में मैं भी हो जाता था नर्वस तो होना ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा ना बस आपको ग्रिलिंग इसीलिए कर रहा है कि आपको उस टाइम पे नर्वस कर दे, वो देखना चाहते हैं कि इसकी स्ट्रेस कैसे हैंडल करता है ये। तो बैठे हुए हैं, अब वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो फिर बस यही है कि आपको उस टाइम पे नर्वस नहीं होना है, बस उसका जो क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है उसको सुनो और अपनी लाइफ के जो सही है, भले झूठ बनाया है करो उससे। ठीक है, चलो ओके। एक और बार SSB जाने का मौका मिलेगा तो कहाँ पे? अब तो वैसे जाने भी वाला है तो अभी 2-3 महीने में आ जाएगा, है ना? चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। सो गाइज, रमन की जर्नी एक रिमाइंडर है कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, इफ यू हैव फोकस, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में रमन का क्या हुआ था, ही वाज वेरी क्लोज, कॉन्फ्रेंस में आके बॉर्डरलाइन ही गॉट आउट, है ना, जैसा कि सबके साथ होता है, नर्वस हो गए थोड़े से, है ना, एंड आई थिंक अदरवाइज ही वुड हैव गॉटन रिकमेंडेड। इट इज़ द सेम सिचुएशन दैट आई गॉट इन माई अटेम्प्ट, जिसमें मतलब बस
एक एडवांटेज मेरे को ये था कि मैं ये लेके चल रहा था कि भाई अच्छा जितना वेट करा रहे हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ऐसे ही होता है ना, मैं ये सोच के चल रहा था। आई डिड नॉट गिव अप, सो बट होता है, आई मीन यू नो। सो पॉइंट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि किसी दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द राइट वे, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑलवेज, राइट। इंट्रोस्पेक्शन करें, जैसे अभी पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ पे बार बार घूम के बात आ रही है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक करेक्ट तरीके आप वो करें, फाइन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उधर एक फ्री कोर्स है विच इज़ 4 day वर्कशॉप, राइट। तो उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देयर इज़ वन सेशन दैट वी हैड, 1-1.5 घंटे हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे ही बात करी है, हाउ टू डू दैट, राइट। So all right, so that is all for today. Thank you everyone. Thank you Raman. थैंक यू। Let's wrap up. Okay. चलो. Oh.